and in this lecture, class 6 science, we are going to continue our chapter 8, that is the plant world. So, in the previous lecture, we have discussed about different categories of the plants. किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में हमने प्लांट्स को कैटेगराइज किया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. ओके, किस तरीके से वो आपस में डिफरेंट हैं और उनको हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है. राइट. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट में. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसा सबसे पहला व्यू होता है प्लांट का. ओके, कैसा प्लांट दिखता है सबसे पहले. सो आई हैव मेड हियर स्टेम, and these I have made roots, and these are not visible from the above. ये क्योंकि under the ground होती हैं. Okay, so what I have made here, just a general diagram of the plant. First of all, this is stem. देखो सबसे पहले हम देखते हैं. देखो ग्राउंड से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है प्लांट. बिलो ग्राउंड there are roots, and above the ground there is shoot. Okay, above the ground this is shoot. Right. So हम प्लांट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज above the ground, that is shoot system. ये पूरा सिस्टम क्या हुआ? shoot system. And the part of the plant that is below the ground, this is known as root system. Right, this is known as root system. And above the ground in shoot system, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? ये एक स्टेम है. This is stem, and from the stem different branches are arise. जैसे ऐसे branches different branches arise होती हैं और उन branches पे leaves present होती हैं. Right? Leaves are also present, some buds are also present, fruits are also present, flowers are also present. Okay, so all these consist under shoot system. ये shoot system पूरा shoot है. shoot में से branches आ रही हैं, फिर branches पर leaves हैं, fruits भी हैं और flowers भी हैं. Right? So this is the basic diagram of a plant, जिसमें हमने देखा कि plant को 2 categories में divide किया गया है. First is the root system and second is shoot system. Now root system is divided into 2 parts. Basically ये 2 types का होता है root system. First is taproot system and fibrous root system. Fibrous root system. Right. So what is taproot system? सबसे पहले taproot देखते हैं. Students, taproot system में main root होती है. कैसे? Look, this is a main root, and from this main root subsidiary or lateral roots are arises. ये लेटरल रूट्स इसमें से अराइज होती हैं मेन रूट में से. ठीक है. तो यहाँ टैप रूट में बेसिकली एक मेन रूट होती है, उसमें से लेटरल रूट्स अराइज होती हैं. राइट. सो दिस इज टैप रूट सिस्टम. करेक्ट. एंड एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट दैट आर हैविंग टैप रूट आर रोज, डेलिया. ये फ्लावर है. Right. Next is fibrous root system. In fibrous root system, there is tuft of root that arise from the starting point of the root. जहां से root arise हो रही है students, यहीं से ही different roots arise होती हैं.
Okay, just for the example, I have taken out this plantlet of aloe vera. You can look at this. The leaves of roots. Check the roots. How are the roots arisen from this? ये है fibrous roots. Is it visible? तो ये फाइब्रस रूट्स अराइज होती हैं, एक ही पॉइंट से अराइज हो रही हैं. लुक एट दिस, सारे के सारे रूट्स एक ही पॉइंट से अराइज हो रही हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेन रूट है उसमें से लेटरल रूट्स अराइज हो रही हैं. नो, एक ही पॉइंट से सारी रूट्स अराइज हो रही हैं. ठीक है, तो ये जो एलोवेरा प्लांट है, छोटा सा प्लांटलेट है ये एलोवेरा का, तो इसमें बेसिकली फाइब्रस रूट्स अराइज होती हैं. ओके, फाइब्रस रूट अराइज इन दिस. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट टैप रूट सिस्टम, इसमें रूट्स कैसे होती हैं, और फाइब्रस रूट सिस्टम, इसमें रूट्स कैसे होंगी. राइट, तो फाइब्रस का एग्जांपल है, वीट में भी ऐसी फाइब्रस रूट्स होती हैं. राइस ऑल्सो हैव दिस फाइब्रस रूट सिस्टम. क्लियर? नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट. रूट के क्या फंक्शंस होते हैं? Students, basically the function of root is first, that is to uptake the nutrients. First function of root is to absorb nutrients, water from the soil. जैसे कि ये रूट, ये ग्राउंड है, यहाँ से रूट्स अराइज हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ आपका प्लांट है. तो ये जो प्लांट की लीव्स होती हैं और भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उनको वर्क करने के लिए वाटर चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी वाटर चाहिए. राइट, तो ये वाटर कहाँ से मिलेगा? रूट्स. जो भी यहाँ सॉइल प्रेजेंट होती है, उस सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, दोनों ही चीजें रूट्स एब्सॉर्ब करती हैं, एंड देन द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड अबव to the leaves of the plant. Correct? Secondly, these roots are anchored into the soil very deep. Means बहुत अच्छे से, बहुत फर्मली ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से कोई जो प्लांट है वो फॉल डाउन नहीं होगा. It will be stabilized on its place properly, right? And soil will also not be eroded, and the plant will also not fall down. Clear? So these are the two basic functions of the roots, right? To take up water, minerals, nutrients, and secondly to hold the plant straight in the soil. Correct? Students, except these two important functions of the root, there are some other functions also. ये functions तब perform होते हैं जब प्लांट को जरूरत होती है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल या डिफरेंट कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें रूट को ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. ओके, इसकी वजह से रूट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. ठीक है, कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी डिफरेंट एडवर्स कंडीशंस आती हैं, उस केस में प्लांट की जो रूट्स हैं वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और उसकी वजह से उन्हें कुछ चेंजेस लेकर आती हैं वो अपने अंदर, एंड दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स परफॉर्म सम मोर फंक्शंस आल्सो. जैसे कि फर्स्ट एक और फंक्शन है फूड स्टोरेज का. अब फूड स्टोरेज में कई बार प्लांट्स को इस तरीके ऐसी कंडीशंस आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें उनको फूड चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है फूड की, इसीलिए वो उस टाइम के लिए अपनी रूट्स में फूड को स्टोर करके रखते हैं. राइट, सो दैट दे कैन टेक फूड फ्रॉम देम.
okay, for their plants also, right? So root act as food storage also. Example of this is turnip, carrot, beetroot also. So basically जो फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐसी रूट्स जनरली टैप रूट होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. एंड इनसाइड दैट फूड इज स्टोर्ड. जो बेसिकली टर्निप है वो एक रूट है, इट मीन्स, और हम रूट को ही इनटेक करते हैं. टर्निप इज अ रूट. इसी तरीके से कैरेट, बीटरूट, ये भी रूट्स हैं और इन रूट्स को हम इनटेक करते हैं. ये रूट्स बेसिकली क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर्ड होता है तो यही इडेबल रूट्स भी कहलाती हैं, ठीक है. Therefore we call them edible root because we eat them, right? Now next modification is for extra support. Sometimes it happens that the stem of the plant is very weak. In that case, roots modify themselves so that they can provide support to the stem, right? अब कुछ केसेस में जैसे कि बैनियन ट्री है, ओके. तो जो बैनियन ट्री है स्टूडेंट्स, ये एक मेन ट्रंक है इसका. इस केस में बैनियन ट्री, अब यहाँ से कुछ रूट्स आती हैं ऐसे, ठीक है. ये होती हैं प्रॉप रूट्स. दीज रूट्स आर नोन एज प्रॉप रूट्स. अब एक और रूट्स होती हैं जैसे कि मेज प्लांट में. मेज का प्लांट पता है, इसमें इसकी स्टेम भी समवॉट वीक होती है, तो यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट देती हैं ये, ठीक है. ये होती हैं स्टिल्ट रूट्स. दीज रूट्स आर नोन एज स्टिल्ट रूट्स, राइट. एंड वन मोर रूट्स आर ऑल्सो देयर, दैट इज क्लाइंबर रूट्स. इसमें एग्जाम्पल आप मनी प्लांट का ले सकते हैं. एंड यू कैन लुक हेयर, आई हैव लुक एट दिस. दिस इज द क्लाइंबिंग रूट. ये क्लाइंबिंग रूट हेल्प करती है, सपोर्ट करती है इस क्लाइंबर को कि ये क्लाइंब करे, ठीक है. ये मनी प्लांट है. मनी प्लांट की बेसिकली जो रूट्स होती हैं ये है क्लाइंबिंग रूट्स. इसकी हेल्प से ही ये क्लाइंब करती है, ओके. एंड मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर, राइट. सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट different types of roots, their functions, and how the roots are modified into another thing so that it can provide some more functions to the plant. हमने ये सारी चीजें roots के बारे में study किया, ठीक है. So this was all for today. Thank you.